Assalamu alaikum. Please subscribe my channel. Today our topic of discussion is the treatment of hypothyroidism. Levothyroxine is basically a drug which is used to treat hypothyroidism condition. We will discuss about its dose, side effects, warnings, how to administer it, storage as well as drug interactions. ड्रग इंटरेक्शंस में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम थायरोक्सिन लेवोथायरोक्सिन को कम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो मे बी दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, या फिर लेवोथायरोक्सिन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है, या इसके साथ यूज़ की गई कम्बिनेशन वाली ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। लेवोथायरोक्सिन comes in three dosage forms: tablet, capsule and its injection form. The benefit of its injection form that it directly goes into blood and then distribute to its target site. Mean it show its action in a very rapidly. While its other dosage form like tablet and capsule take time for show its action because first it has to disintegrate, then dissolution, then absorption. Mean it require a lot of time to show its action. Brand names of levothyroxine tablet: Synthroid, Levoxyl, Unithroid. Doses. Its dose is according to the weight. First dose according to the weight is 1.5 to 1 mcg per kg per day. But the dose that patient have to administer in its empirical treatment for initial 3 days is 50 mcg. What is empirical treatment? Empirical treatment is that treatment which is based on the symptoms of the disease, mean no clinical report. Maximum dose is 100 mcg. The formula to calculate the dose according to the weight is equal to weight multiplied by dose, and maintenance dose of levothyroxine in the treatment of hypothyroidism is 100 to 150 mcg per day. How to administer levothyroxine? You have to administer it without food, mean on empty stomach before 30 to 1 hour of the first meal of day. You can administer it by either cut or crushing the tablet. Storage of levothyroxine. You have to store it at room temperature between the temperature 59 and 86 Fahrenheit. Keep it away from light and don't store this medication in moist place because it may lead to the microbial degradation. Side effects of levothyroxine. It increases appetite. Why appetite increase? Because rate of metabolism is increased. Weight loss because same factor metabolism will be increased. Heat sensitivity, hyperactivity, anxiety, trouble sleeping, tiredness, tremors, hair loss, but it will be temporary. Diarrhea, vomiting, stomach cramps, heart attack. That's why levothyroxine should not administer by those patients who have heart problems. Drug interaction. First, I will discuss that interaction that increases the side effects of both drugs. For example, antidepressants such as amitriptyline and meprotilline. These interactions increase the side effects of both antidepressants as well as levothyroxines. And which side effect will increase? Example is arrhythmia condition, mean irregular heart rhythms. Symptomatic drugs like pseudoephedrine and albuterol. इसमें भी दोनों ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं, लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स सीरियस हो सकते हैं. ब्लड थिनर्स फॉर एग्जांपल वेरफरिन. अगर हम इन दोनों ड्रग्स को लेवोथायरोक्सिन को और वेरफरिन को एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा है. इसकी वजह से इसका सलूशन यही है कि हमें वेरफरिन की डोज को कम करना पड़ेगा जब उसे इन कम्बिनेशन विद लेवोथायरोक्सिन एडमिनिस्टर करवाएंगे पेशेंट्स में. कैटामीन बेसिकली एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो कि यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए पेन को, सिडेशन को और एमनेसिया को. लेकिन जब इसे लेवोथायरोक्सिन के साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और फास्ट हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा.
need to adjust the dose of other drugs when they administer with levothyroxine. में लिवोथायरोक्सिन के साथ अगर दूसरी ड्रग कम्बिनेशन में दी जाएगी तो लिवोथायरोक्सिन दूसरे ड्रग्स के इफेक्ट को कम कर देता है, लाइक डायबिटीज ड्रग्स हो गई, डाइजोक्सिन हो गई, थियोफाइलिन हो गई। फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स ड्रग्स की एग्जांपल लाइक इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, नेटक्लाइनाइट, ग्लाइसिनाइट एंड पायोक्लिटाजोन। जब इन ड्रग्स को हम लेवोथायरोक्सिन के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो इन ड्रग्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसका सलूशन यही है कि इन ड्रग्स की डोज इंक्रीज कर दी जाए। डाइजोक्सिन बेसिकली एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि एरिथमिया वगैरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन जब इसे लेवोथायरोक्सिन के कम्बिनेशन में एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी डोज को भी इंक्रीज करना पड़ता है, बिकॉज लेवोथायरोक्सिन इसके इफेक्ट को कम कर देता है। थियोफाइलिन बेसिकली यूज होती है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट दी wheezing, shortness of breath, chest tightness that is caused because of lungs problems like asthma and bronchitis. But when it is administered in combination with levothyroxine, your doctor have need to monitor the level of theophylline in your body. Now I will discuss that interaction that make our levothyroxine drug less effective. For example, antidepressant sertraline. सेट्रालिन बेसिकली एक सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सेरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है? ये सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है और बॉडी में इसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। और सेरोटोनिन बेसिकली एक की हार्मोन है जो कि स्टेबलाइज करती है हैप्पीनेस और मूड को। लेकिन जब इसको कॉम्बिनेशन विद लिवोथायरोक्सिन लेते हैं तो ये लिवोथायरोक्सिन की डोज को इंक्रीज करना पड़ता है। Rifampin and anti-seizure drugs, for example, carbamazepine and phenobarbital. Rifampin क्या, ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके साथ भी जब लेवोथायरोक्सिन को कम्बिनेशन में एडमिनिस्टर किया जाता है तो लेवोथायरोक्सिन का ड्रग कम हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड फेरस सल्फेट, ये ड्रग्स भी लेवोथायरोक्सिन के इफेक्ट को कम कर देते हैं। We should administer the levothyroxine at least 4 hours before or after taking these drugs. Colcibellum, cholestyramine, colestipol, caxalate and sevelamer. इन ड्रग्स को भी एडमिनिस्टर करने से 4 घंटे पहले लिवोथायरोक्सिन को एडमिनिस्टर कर लेना चाहिए, बिकॉज ये ड्रग्स भी लिवोथायरोक्सिन के इफेक्ट को कम कर देती हैं। कोल्सवेलम, कोल्स्टाइरामिन एंड कोल्स्टिपोल, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में कम करता है, जबकि काइक्सालेट ये पोटाशियम के लेवल को नॉर्मलाइज रखता है बॉडी में, मीन एक्स्ट्रा पोटाशियम को एलिमिनेट करवा देता है बॉडी से, जबकि सेवलेमर ये क्रोनिक किडनी डिजीज में एक्सक्रीट करवा देता है फॉस्फोरस को। ऑर्लिस्टेट, ऑर्लिस्टेट बेसिकली बेली फैट को रिड्यूस करता है, और बेली फैट्स का दूसरा नाम क्या है? विसरल फैट्स। ये भी जब लिवोथायरोक्सिन के साथ कम्बिनेशन में लेते हैं तो ये लिवोथायरोक्सिन के इफेक्ट को कम कर देता है। साइमथिकॉन एंड एंटीसिड्स लाइक एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। व्हाट इज फंक्शन ऑफ साइमथिकॉन? साइमथिकॉन बेसिकली यूज़ करते हैं टू रिलीव painful pressure that is caused by the gas that is present in stomach and intestine. ये ड्रग्स भी जब इन कम्बिनेशन विद लिवोथायरोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं तो लिवोथायरोक्सिन के इफेक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट इज कैंसर ड्रग्स दैट इज बिलोंग टू द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर क्लास इमेटिनिब। टायरोसिन काइनेज क्या होता है? ये बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि एक्टिवेशन के प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू। वार्निंग्स, FDA वार्निंग फॉर नॉट यूज फॉर ओबेसिटी एंड वेट लॉस। इस ड्रग का फंक्शन ये है कि ये मेटाबॉलिज्म को इनक्रीज कर देता है, मतलब फैट की रिडक्शन कर देता है बॉडी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे ओबेसिटी और या वेट लॉस पर्पज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसे हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यूज़ करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए। वाइटामिन सप्लीमेंट्स एंड एंटीसिड्स वार्निंग। अब वाइटामिन में क्या आता है? सप्लीमेंट्स में लाइक आयरन, कैल्शियम या एंटीसिड्स कोई भी इन ड्रग के साथ कम्बिनेशन में लिवोथायरोक्सिन को नहीं देना, बिकॉज ये लिवोथायरोक्सिन की अमाउंट को कम कर देगा, जिसकी वजह से लिवोथायरोक्सिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को ट्रीट ही नहीं कर सकता। जब ये सप्लीमेंट्स लेने हैं ना लाइक आयरन या कैल्शियम, तो ड्यूरिंग 4 आवर्स हम
लिवोथायरोक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। एलर्जी वार्निंग्स। लिवोथायरोक्सिन कैन कॉज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल स्किन रैशेस कर सकता है, फ्लशिंग या फिर स्वेलिंग ऑफ द फेस, लिप्स एंड थ्रोट्स, ट्रबल ब्रीथिंग, wheezing, stomach pain, nausea, vomiting, diarrhea, etc. Food interactions like soya bean, cotton seed meal, walnuts, other dietary fibers. ये जब एडमिनिस्टर करते हैं इन कम्बिनेशन विद लिवोथायरोक्सिन तो ये फूड जो है वो लिवोथायरोक्सिन की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए जब लिवोथायरोक्सिन अगर पेशेंट एडमिनिस्टर कर रहा है तो। वार्निंग्स फॉर पीपल विद सर्टेन हेल्थ कंडीशंस लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम्स का पहले ही मैंने बताया था कि अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम देन ही शुड नॉट एडमिनिस्टर एनी लिवोथायरोक्सिन मीन एंटी थायरोक्सिन ड्रग। डायबिटीज़ में भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये डायबिटिक कंडीशन को वर्स कर सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस, अगर हम लिवोथायरोक्सिन को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो ये बोन्स में मिनरल को कम कर देता है। इसके अलावा बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा एड्रीनल इंसुफिशेंसी में भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये लिवोथायरोक्सिन प्रेसिपिटेट कर देता है एड्रीनल हार्मोन को। अब पहले से ही अगर एड्रीनल इंसुफिशियंसी है तो ये भी प्रेसिपिटेट कर रहा है तो एड्रीनल इंसुफिशियंसी वाली कंडीशन वर्स हो सकती है। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स में भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स को ज़्यादा वर्स कर सकता है, लाइक क्योंकि लिवोथायरोक्सिन थायरोक्सिन का थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा करता है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाता है और क्लोटिंग नहीं हो पाती बॉडी में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।